So hello my dear friends, today we are going to disclose another area of the mathematics, that is HCF and LCM. So we will be starting shortly. Meanwhile, those who are live, they can engage their friends by inviting them to this live session so that they also get something. Also, let me know that everything is all right. We have no gap of communication, so that we start. So here we go, and we have what LCM and HCF. HCF, also called GCF. So here LCM stand for, as you know, least common factor, while HCF stands for highest common factor, while it's another form, that is GCF, which is greatest common factor. So both are the same. Okay, all right. So I'm telling you, general things about LCM and HCF, that how they are utilized on daily life. Then we will be going to examples and concepts, clarifying them later on. So LCM, in short, it is used about an event that is or will be repeating over and over. Or it can be used, LCM, to purchase multiple items, right, in order to have enough. या तो कोई मतलब कोई इवेंट्स जो बार बार रिपीट होते हो, ठीक है, उसके लिए हम LCM इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स में, या स्टैटिस्टिक की जो चीज़ें हैं, ख़ासकर साइंस जो सब्जेक्ट्स हैं. इसके अलावा टू परचेज मल्टीपल आइटम्स, राइट, मुख्तलिफ चीज़ों को ख़रीदने के लिए भी LCM इस्तेमाल होता है. और इसके साथ साथ टू फिगर आउट व्हेन समथिंग विल हैपन अगेन एट द सेम टाइम. और इसके साथ जो मतलब कुछ चीज़ें होती है, जनरली बात कर रहा हूँ, एक ही वक्त में, ठीक है, उसके लिए हम LCM इस्तेमाल करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट. while another one, that is HCF or GCF, splitting up things into smaller section. Let me write it simply: splitting of things into sections. ठीक हो गया. इस तरह to equally distribute two or more seeds of items into their largest groupings. या मतलब स्मॉल चीजें हैं, उसको मतलब हम क्या करते हैं, लार्ज थिंग्स को हम या सीड्स है, ठीक हो गया, इसको हम जब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मुख्तलिफ सेक्शन वगैरह में डिवाइड करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और ये वाला जो है ना, ये आगे जाके इसके जो कंसेप्ट है वो समझ में आएगी, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ. रिपीटिशन ऑफ things repetition of things to purchase. Write it please.
in the comment box to purchase multiple items, right? तो ये जनरल थिंग्स है इसके बारे में, और ये इसके एप्लीकेशन भी है डेली लाइफ में. और we can also say in regarding HCF to figure out how many people we can invite, to know how many people we can invite, right? Or to distribute something in rows and groups. तो ये वाला ये कैटेगरी पे ये लार्जर और चीज़ों को स्मॉल सेक्शन में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट या स्प्लिट करना है. और ये वाला जो है ना LCM, इसको मुख्तलिफ जो इवेंट्स या मल्टीपल चीज़ें या रिपीटिशन ऑफ समथिंग होती है उसके लिए हम LCM बाकायदा यूज़ करते हैं. ये तो जनरल चीज़ें थी. अब आते to the topic concept. So LCM, as I told you already, that it is least common multiple. HCF or GCF, that is greatest common factor. So we say LCM generally that to point out, okay, to point out highest powers of shared factors. यहाँ factors की बात है, ठीक है. इस तरह जो सॉरी ये वाला GSF है, ठीक है, GCF. HCF या GCF है. While LCM highest power of each factor. ठीक हो गया. ये आगे जाके हम अप्लाई करेंगे. ठीक हो गया. अच्छा, now let's check in before going to the example, let me tell you that we can find out LCM and HCF via two ways. One is called prime factorization, and second one is डिवीजन मेथड, राइट. दोनों को हम दोनों तरीके से मालूम कर सकते हैं. पहले वाला इजी है, दूसरी वाला इसमें डिवीजन है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल वी हैव 3 and 4. इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है? LCM प्लस HCF. ठीक है. पहले हम आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू, राइट. सो फॉर 3 we write equals 3 times 1 is 3. इसके हम क्या लेते हैं? फैक्टर्स लेते हैं. ठीक है. 3 1 is 3 and then 3 times 2 equals 6 and then 9 and then 12 and then 15 and then 18 and so on. For 4 we write 4 times 1 is 4 and then 8 then 12 then 16 then 20 then 24 and so on, right. So these are called factors.
फैक्टर्स और मल्टीपल की बात हम पहले लेक्चर्स जो पहले वाले दिन थी उसमें हम ये कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं. ये दीज आर फैक्टर्स व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज थिंग ईच अदर सो यू गेट मल्टीपल इधर दिस वन और दिस वन. ठीक हो गया. अब इसकी जो है ना LCM least common multiple, so that is that you see here and observe, so you will only see that 12 is the least common, but both is the common number you find here in both factors of the both numbers 12. तो इसकी एलसीएम क्या हो गई? ओ 12 हो गई. लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. अच्छा, इसकी कंफर्मेशन अगर ये ठीक है या गलत है, ये हम डिवीजन की मेथड भी कर सकते हैं, या अगर डिवीजन से आप पहले एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करते हो तो बाद में आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि आया ये चीज़ या ये आंसर या ये प्रोडक्ट मैंने सही निकाला या नहीं. ठीक हो गया. अगर हम डिवीजन की मेथड जाए, पार्ट 3 लेट अस डिवाइड इट, सो 3 times 1 is 3 and part 4 that is 4, right? So here what we have part 3 which is equal to, there is only 3, part 4 we have there is only 4s. Both are the factors, so multiply each other. 3 times 4 equals 12, so that is confirmed via this method is. ठीक हो गया. अब इसके जो HCF है, या तो हमने इसके दोनों नंबर के फैक्टर्स निकाले, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिए कि HCF के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मल्टीपल्स निकालेंगे हर एक नंबर के लिए अलग अलग. ठीक है. या अगर आप if you differentiate between both the methods of factorization with respect to LCM and HCF, so here if you see here these are factors, right? Here for example I write 3 times 1 is 3 and then it is only 3, that 3 times 1 is 3 and again, and simply for 4 it is also 1 and 4. So what you see here, only one common factor which is 1, and that is the highest, that is the highest common factor. इस वजह से इस तरीके से हम ये भी इसकी HCF क्या हो गई, HCF 1 हो गई. ठीक हो गया. अच्छा, एक और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम दूसरे जो पोर्शन है उसकी तरफ जाएंगे. ठीक है. सपोज वी हैव 18, 3 नंबर लेते हैं. ठीक हो गया. 20 है हमारे पास और फिर 30 है. तीनों का हमने LCM HCF फाइंड आउट करना है. सो लेट्स डू इट via division first. So for 18, let me write it 2 times 9 equals 18, and then again with 3 times 3 equals 9. आपने उसी वक्त तक ये करना है जब तक आपके पास प्राइम नंबर यहाँ तक आ जाए. कीप इन माइंड. ठीक है. तो यहाँ हमारे पास प्राइम नंबर आ गया, बस ठीक है, आगे नहीं जा सकते. So for 18 we have 2 times 3 times 3. Let's do it for another one, that is 20. So 2 times 10 equals 20, and then 2 times 5 equals 10. Prime number, baat khatam. So for 20 it is 18, not 8. Okay. So 2 times 5
So for 30, so 2 times 15 equals 30, and then what? 3, yes, 3 times 5 equals 15. So for 30 we write here 2 times 3 times 5. ठीक हो गया. अब इसको आप क्या करें, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए. फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स 3 स्क्वायर्ड. हियर अगेन यू हैव 2 टाइम्स 2 है, ठीक हो गया. सो 2 स्क्वायर टाइम्स 5, एंड देन फॉर दिस 2 टाइम्स 3 द सेम थिंग टाइम्स 5. अब इसी से हम, अब ये तो फैक्टर्स हैं, ठीक हो गया. लेट मी follow, and this is factors. ठीक हो गया. अब HCF और LCM फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है. सो for HCF what we do, we have to take smallest powers of shared factors. Smallest, इसमें smallest कौन कौन से है? Let's circle it. So this is the smallest and this one is the smallest. और तो कोई है ही नहीं, ये तो 5 है ना. So smallest powers of shared factors which is 2. So we can take 2 as HCF for all numbers. ठीक हो गया. I hope you get the basic idea about it. Now LCM. So LCM, in this case you have to take highest powers of each factor. Highest powers of each factor. So for that, in this case we have this one number which is highest powers, and this one is also similarly we have 2 pies, but we have to consider 1 pie because of the highest power. हम इसको कंसिडर करना है, ठीक है, एक ही कंसिडर करना है, हम कॉमन की बात कर रहे हैं ना. ठीक हो गया. सो वी कैन राइट 2 स्क्वायर टाइम्स and 3 squared times 5. So this is 4, this is 9, and this is 5. Again, so 4 times 9 equals 36 and 5. So 36 times 5 we get 40 and 40, yes, 180. 180 हमारे पास क्या हो गया, ये LCM आ गया तीनों नंबर के लिए. ठीक है. अब अगर आप ये बट बिफोर दैट लेट मी चेक दैट वी आर गोइंग गुड. यस, आई होप सो. अच्छा, अब अगर आप ये मालूम करना चाहें कि आया ये LCM आंसर और LCF सही है या नहीं, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू ये कंफर्म कर सकते हैं. ठीक है. और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, हर एक नंबर की, मतलब हमारे पास क्या है, जल्दी जल्दी करें. 18 है, 18 के वो फैक्टर्स ले लें, फिर 20 के ले लें, ठीक है, और फिर 30 के ले लें, तो आपके पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे. ठीक है. उसी के थ्रू आपने क्या HCF फाइंड आउट करने, और फिर उसी मेथड के थ्रू आपने मल्टीपल्स लेने हैं हर एक नंबर की. ठीक है. सो यू विल बी डू इट बाय योरसेल्फ. ठीक है. ये आपने खुद ही करना है. Okay. I hope it is clearly visible to you.
ये 2019 का एक क्वेश्चन है CSS पेपर का, ठीक है। सो Moise was trying to sleep in one night, but there was too much noise around him. His clock ticked every 5 seconds. ठीक हो गया. A tape was beeping every 7 seconds, and a pit dog snored every 5 seconds. He noticed on his clock that all three things happened together on the stroke of midnight. Find up to how many seconds are three things happen together. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन से हम डेटा निकालेंगे. क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे. No, HCF is smallest powers of shared vectors. HCF is, you have to take smallest powers of shared vectors. ठीक है, correct it please. I repeat, HCF is smallest powers of shared opposite है ना, highest है, तो आपने smallest powers कंसिडर करनी है. यस, डेटा निकाल रही है. पहले मैं ये चीज क्लेरिफाई कर दूं. दूसरा एलसीएम है, लीस्ट है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट भी आप कह सकते हैं ना. तो इसके अपोजिट आपने लेने हैं, हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच फैक्टर लेने हैं. ठीक है, अच्छा, तो चले इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं. पहले डेटा लेते हैं. तो डेटा हमारे पास क्या है, 5 सेकंड्स है, यहां मैंने अंडरलाइन कर दिया है 5 सेकंड्स. और 5 सेकंड में क्या होते हैं, क्लॉक टिक करते हैं. ओके, इस तरह हमारे पास एवरी 7 सेकंड क्या होता है, 7. एवरी 7 सेकंड पे क्या होता है, टिप वाज टेप, नॉट टेप, डिपिंग. ये इवेंट्स जो है ना, ये अकड़ होते हैं. ठीक हो गया. और फिर जो है ना 12 पे क्या होते हैं, एवरी 12 सेकंड. एवरी 12 सेकंड पे क्या होते हैं, डॉग स्नॉट करते हैं. डॉग स्नॉट करते हैं. अब 3 चीजें हैं, 3 चीजें हैं. और पहले मैंने जनरली आपको बता दिया था कि एलसीएम क्या है, जो चीजें मतलब इवेंट है जो बार बार रिपीट होती है. यह रिपीटिशन की बात आती है. अगर आप क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा. ठीक है, तो रिपीटिशन ऑफ अ सर्टेन इवेंट्स. जब ये चीजें पहले मैंने बात की, आपको मैंने बता दिया था कि एलसीएम इज जनरली एन इवेंट which repeat over and over. ठीक है, तो इसके लिए हम इन नंबर्स का एलसीएम लेंगे और फिर इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. सो लेट्स डू इट. अच्छा, so for 5 that is 5 times 1 is 5 prime number, again not prime number, composite number, but we can't go beyond this. Okay, so that is 5, simple 5. And for we have 7, so again 7 times 1 is 7, again 1, so we can't go beyond this. And then we have 12, so for 12 2 times 6 is 12. Okay, and then 2 times 3, 2 times 3 equals 6. We get prime numbers. Okay, अब सारी चीजों को हमने कंसीडर करना है. पहले हमने तो
मैं बता रहा हूँ आपको फिर से कि जो एलसीएम है उसका हम हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच फैक्टर लेंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास जो है ना इवेंट जो है ना तीन चीज़ों का होते हैं, तो सारे को आपने इंक्लूसिव लेना है, ठीक है। सो हियर वी कैन राइट दैट for 5 which is 5, for 7 which is 7 in that case, and in case of 12 we have 2 squared because of this 2, and then we have times 3, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, हमने इसको आगे लेकर जाना है। सो 5 times 7 times 2 square times 3, राइट। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो 5 times 7 is equal to 35 times it is 4 and this is 3 again. So here what we get, it is 12 and times 35, so 12 times 35 you get 420 is in LCM पर these 3 नंबर, ठीक हो गया। ये वाला इसका आंसर है, इसके थ्रू हमने फाइंड आउट किया डिवीजन की मेथड। अब अगर आप इंक्विजिटिव है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको कंफर्म कर सकते हैं बाय योरसेल्फ, ठीक है। ये तो इसकी एग्जांपल हो गई, ठीक है। लेट मी चेक। अच्छा, टेस्ट अभी मतलब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आपने बस 10-15 मिनट के लिए काम करना है, बस इसको मतलब पेस्ट करना है या अपलोड करना है या लिखना है, ठीक है। इसमें कोई मतलब वो फॉर्मल चीजें नहीं है, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है जो जल्दी जल्दी पूछेगा, ठीक है। मैं मेन वाला आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट एक्सरसाइज। आपने क्या करना है, आपने 12, 8 और 6 का क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है via division and later on confirm it through prime factorization, ठीक हो गया। यह आपका तकरीबन 10 से 15 मिनट लेंगे। यह आज के लिए आपका टेस्ट हो गया, ठीक है। जब आप मतलब इस पे सारी चीजें अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट, तो आपके लिए ये फिर आसान हो जाएगा। हाउ टू इन द आंसर इन पेपर, वी जस्ट यस टू द पॉइंट बात करें, वहाँ मतलब आपके पास टाइम होता है। टाइम मैनेजमेंट इज द इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज इम्पेरेटिव, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट तो आपने टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है। हाल बता आपको प्रेजेंट भी करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। सो इसमें कोई मतलब आपने मतलब ओवर राइटिंग नहीं करनी, यहाँ मतलब क्या कहते हैं उसको, ब्यूटीफाई भी नहीं करना है, लाइन्स भी नहीं करने हैं, अंडरलाइन नहीं करना, सर्कल भी नहीं करना है, ठीक है। स्क्वायर भी नहीं सराउंड करना है, कुछ भी नहीं करना है। जल्दी से मतलब हाल बता आपकी राइटिंग जो है ना वो लेजिबल होना चाहिए, टू द पॉइंट, और जो पूछा गया है टू द पॉइंट आंसर करना है, बस। ये आप क्वेश्चन हो गया, आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करना है पेपर पे, फिर अपलोड करो, लेकिन वो मतलब विजिबल हो कि मैं उसको चेक करूं। अगर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं तो फिर भी ठीक है। सो टेक मी आल्सो वेयर आई बी रीडिंग योर कमेंट्स, ओके।
we have just we have taken the class for 30 minutes and you have also the remaining 30 minutes, so you can do it easily. Okay, उसके बाद जो है ना 20 मिनट के बाद मैं कमेंट बॉक्स को मैं टर्न अप कर दूंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसको अपलोड करें, कोई मतलब आगे पीछे नहीं जाना है। सी यू देन।